Imagine you are doing internship in Japan in full stack and front end development without paying anything. Your travel, food, transportation, every expense is covered. In this video, I will discuss all the details step by step how to get this Japan internship from Indian students, and there is no Japanese needed. If you are new to this channel, make sure to subscribe to the channel so you don't miss such opportunities. So hi everyone, I am Dhruvi Khandelwal and Hinge Group has come up with this summer internship program for all the Indian students and ज़रूरी नहीं है आपको Japanese आनी चाहिए, but you should be good in English, you should be good in communicating English. This is a 4 to 6 weeks program and यहाँ पे आपको कोई पैसा खर्च नहीं करना. You don't have to spend a single penny. Every transportation and everything will be fully funded. I will tell you how later in this video. So let's get started. So this is the official website जहाँ पे ये internship load हुई थी, आई थी. This is an Hinge Global Internship Program GIP and it will be happening in Tokyo. यहाँ आपको genuinely जापान जाके internship करने का मौका मिलेगा. There are two pathways. First is full stack engineering and second is front end engineering. So you can do internship in any of one of this domain. This is a 4 to 6 weeks program जहाँ पे आपकी personal and professional growth होगी, वो भी internationally diverse environment में. You will be in an environment जहाँ पे internationally all over countries से लोग आए होंगे internship करने. So आपकी network worth यहाँ पे आ जाएगी and you will learn a lot of things. So let's talk about the pathways. Now first is full stack engineering pathway. यहाँ पे आपको build to end solutions बनाना सिखाएंगे using Python, Go या फिर TypeScript. मतलब you will learn in this internship. You should be having a learning mindset and यहाँ पे आप full stack development को सीखोगे. इसके साथ साथ you will learn about cloud computing and distributed system. इसका internship का flow ऐसा रहने वाला है कि starting के जो 3 week है वहाँ पे you will given proper full stack training. मतलब ये आपको training provide करेंगे. Then 4th week में you will learn about DevOps. And 5th to 6th week में आपको assignment मिलेगा. You will get an assignment, a unique project for each intern and specific to their branch. मतलब कोई common project नहीं मिलेगा. Every intern will get their own project. Now let's talk about the second pathway, which is front end engineering pathway. यहाँ पे आपको TypeScript सिखाई जाएगी with React और Vue. यहाँ पे आपको फ्रंट एंड डेवलपर्स जो भी आपको इसमें इंटरेस्ट है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं. 1st to 4th वीक में आपको प्रॉपर ऐप डेवलपमेंट सिखाई जाएगी. देन यू विल मूव टू डेवऑप्स. नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. यहाँ पे आप मेरी बात ध्यान से सुनना. आपको दोनों में से सिर्फ एक पाथवे चूज करना है. जो 2 पाथवेज है उनमें से आपको सिर्फ ओनली 1 पाथवे चूज करना है बिकॉज ईच पाथवे हैज एन डिफरेंट इंटर्नशिप शेड्यूल्स. सो आपको सिर्फ 1 चूज करना है. एंड वंस यू एनरोल इन द प्रोग्राम देन यू कैन नॉट चेंज द पाथवेज. आपने अगर एक बार एनरोल कर दिया प्रोग्राम के अंदर, you are entered into the program, now you can't change the pathway, so choose wisely in the starting only. Now let's talk about the benefits and requirement in this internship. यहाँ पे आपको प्रॉपर मंथली सब्सिडी प्रोवाइड की जाएगी. आपको वीजा मिलेगा, प्रॉपर प्री अराइवल वीजा मिलेगा. आपको इसका गाइडेंस भी प्रॉपर प्रोवाइड करा जाएगा. एंड उसके साथ साथ में जो आपकी एयर की ट्रिप्स है, मतलब जो आपकी जापान जाने की ट्रिप्स हैं या जो भी टिकट्स है, सब ये लोग फंड करेंगे. आपको मेडिकल इंश्योरेंस मिलेगा एंड इसके साथ साथ यू विल गेट टू हैव गुड फूड. आपका फूड भी प्रोवाइडेड है. एंड मंथली आपके टेक्निकल सेशंस होंगे. There will be monthly technical sessions for engineers to share the knowledge and the latest trends. It means you will be connected with the engineers, you will be having the conversations and यहाँ पे कोई problem नहीं है if you don't know Japanese because Indian students को English proper आनी चाहिए which is a good language and which is mandatory. इसके साथ साथ आपको ऑफिस में फैसिलिटीज प्रोवाइड कराई जाएंगी जैसे कि रिफ्रेशमेंट, स्टाफ पार्टीज एंड एंटरटेनमेंट भी आपका बना रहेगा. ऐसा नहीं है ओनली वर्क कल्चर. किसी भी कंपनी के अंदर द वर्क कल्चर एंड जो एनवायरमेंट है वो मैटर करता है. एंड इसके साथ साथ यू विल ऑल्सो गेट to know about Japanese cultural and their events. You will get to know about the food. So before moving ahead in the video, let's talk about the eligibility criteria or the qualifications. अब यहाँ पे जो बैचलर्स डिग्री है कंप्यूटर साइंस के अंदर वो सारे स्टूडेंट्स एलिजिबल है. मतलब जो कंप्यूटर साइंस वाले स्टूडेंट्स वो सारे एलिजिबल है. जो भी 3rd ईयर या फिर 4th ईयर में परस्यू कर रहे हैं अपने बीटेक को वो सारे एलिजिबल है. एंड यहाँ पे आपको इंग्लिश में फ्लुएंसी चाहिए. जापानीज इज नॉट दैट मच रिक्वायर्ड बट इंग्लिश में फ्लुएंट आप होने चाहिए. एंड यू शुड बी having basic knowledge of like Linux, Mac OS. मतलब आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए. एंड यू शुड बी इंटरेस्टेड, यू शुड बी क्यूरियस, यू शुड बी हैविंग अ लर्निंग माइंडसेट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट while you are in a company and you are learning and growing.
नाउ व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू कि आप इंटरेस्टेड हो एक करियर अपना बनाना जापान के अंदर, बिकॉज ऑब्वियसली वो आपको अपनी कंट्री बुला रहे हैं, अपने कल्चर दिखा रहे हैं, देन डेफिनेटली दे वुड बी ऑल्सो इंटरेस्टेड इन यू कि आप जापान में स्टे करो, आप वहीं अपना करियर बनाओ. दिस इज सम ऑफ द एक्सपेक्टेशंस. लेट्स टॉक अबाउट द असाइनमेंट. नाउ व्हेन यू विल इंटर्न इन दिस, यू विल गेट हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस इन फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट एंड कैसे डिप्लॉय करते हैं इस AWS में. इसका जो वर्किंग आवर्स है वो भी है. यहाँ पे जो वर्किंग आवर्स है आपकी स्टडीज के साथ में कॉन्फ्लिक्ट नहीं करना चाहिए, इन्होंने क्लियरली यहाँ मेंशन कर दिया है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट हाउ टू अप्लाई. नाउ बिफोर मूविंग अहेड, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लग रहा है तो मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो. एंड इसमें एक पॉइंट है कि इस पूरी इंटर्नशिप में यू विल नॉट गेट एनी स्टाइपेंड प्रोवाइडेड नहीं है, बट डोंट लीव दिस वीडियो. बट देयर आर अदर पर्क्स ऑफ दिस इंटर्नशिप कि आपका ट्रांसपोर्टेशन, वीजा, फूड एंड एवरीथिंग इज फुली फंडेड. तो दैट इज अ वेरी गुड पॉइंट. नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि इसमें अप्लाई कैसे करना है. जो इसका अप्लाई प्रोसेस है वो आपका 3 स्टेप प्रोसेस है. जो पहला प्रोसेस है, आपको उसमें अपना ईमेल को वेरीफाई कराना है. सेकंड, आप पे एक बेसिक कोडिंग चैलेंज आएगा, उसको आपको सॉल्व करके सबमिट कर देना है. एंड ऑल्सो आपको उसके साथ में अपना CV और कवर लेटर भी सबमिट करना है. अगर आपको कवर लेटर चाहिए तो कॉमेंट में बता देना, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी. एंड इसका जो अप्लाई लिंक है, यू विल ऑल्सो गेट दैट अप्लाई link from description only. Now when your coding challenge is passed, your third step is your phone screening round. ये आपका एक ऑनलाइन इंटरव्यू होगा एंड ये सिर्फ उनका होगा जो इन्होंने स्टेप 2 पास किया हो. इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है देयर आर लिमिटेड internship slots and this can be closed at any point of time. So if you are watching this video till now, तो अभी अप्लाई कर दो. don't delay. I'm requesting you to not delay because limited number of इनके पास slots होते हैं and जैसे slots complete हो जाते हैं, the internship is closed before the deadline आने से पहले ही वो इसको close कर देते हैं. So यहाँ पे क्लियर मेंशन है फर्स्ट कम एंड फर्स्ट सर्व. एप्लीकेंट्स इनके पास फुलफिल हो जाएगी पोजीशंस, वैसे ही वो क्लोज कर देंगे. सो एज सून एज यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, जस्ट अप्लाई इनटू दिस. मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो. इफ दिस वीडियो वाज हेल्पफुल टू यू, देन ऑल्सो शेयर विद योर फ्रेंड्स. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड. ऑल्सो कमेंट्स कर देना इफ यू हैव एनी डाउट. आई विल सी ऑल ऑफ द कमेंट्स. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय.